Okay, so hi everyone. My name is Abhinay, and I am a data scientist at 50 Star Technologies and founder at Hygiene Lab. And I'm from the IIT Jodhpur. Means I'm just completed my master from IIT Jodhpur in artificial intelligence and machine learning. So, can anyone just confirm me? Am I audible clearly? You can either use the chat section, right? Just to convey, right? Just to write anything. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay. I hope this is very clear, right? Even you can just see the screen as well, right? Clearly. Okay. Okay. Great. Okay. Great. Okay. So we'll start the session. Just give me 2 to 3 minutes more, right? The people are joining, then we can just good to go, right? See, don't worry about this session. So this will be around 7 days session, right? And we will complete everything from the scratch to the advanced level, including the oops and every concept, right? And I can just make sure कि भाई ये सेशन करने के बाद you don't need to go anywhere, right? आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, right? So we'll start everything mean from the very scratch right to the advanced level, right? So maybe आज की class little bit it will be theoretical somehow, right? क्योंकि आई डोंट नो कि आप में से कौन से लोग जो फ्रेशर्स हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रेशर विद द पाइथन और कौन कौन से रिपीटर हैं. कैन यू जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. Mean if you're fresher you can write fresher, and if you are repeater, although if you have done the python before, so you can write repeater as well. Okay, great. Okay. Okay, that makes sense. Okay, so I guess many of you are fresher, right? Uh, just a second. Okay, right? Fresher. Okay, fresher. Okay, great. Okay. So don't worry, मतलब जो भी freshers हैं, right? Mean you will understand mean most of the topics, right? मतलब इसके बाद फिर you need to simply jump to the maybe if you are pursuing the machine learning or maybe anything, right? तो इसके बाद आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो वो सारे टॉपिक्स. ओके. Okay, many of you are fresher, right? I guess so. Okay, great. So yeah, we'll do all the streaming in the YouTube itself. The reason being is that कि recording भी आपको बाद में मिल जाएगा यहीं पे, right? So आप वापस चैनल पे आके हाइजीन लैब्स के you can actually see the recording as well, है ना? So that will make, yeah, sure. Will okay. So the language will be mixed, right? It will be English only, mean little bit of Hindi, and most of the content will be in English, right, Nitin? So don't worry. Okay. Okay. So just 2 more minutes, right? Then we can just good to go, right? Meanwhile, let me just tell you about the company that we are building, and ये boot camp free में क्यों है, right? So there are n number of the things regarding this thing, right? So देखो ऐसा नहीं कि फ्री में है तो the things will be मतलब हल्का हल्का हम पढ़ाएंगे. Don't worry about that thing, right? मतलब दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? सो पाइथन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. दिस विल बी द टूल फॉर यू, राइट? और इसको लेके आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस. मे बी यू कैन टेक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, और मे बी द एजेंटिक एआई एज वेल. इवन इफ यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आप जैंगो वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? यू कैन इवन एक्सप्लोर दी फ्लास्क, और इवन यू कैन एक्सप्लोर दी you can say the different tools or the different frameworks we have, right? अगर आप डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हो तो यू कैन इवन एक्सप्लोर सम सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी, सी बॉर्न, मैटप्लॉटलिब, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? सो पाइथन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, राइट? एंड दिस इज द वन शॉर्ट ऑफ द टूल फॉर द अदर वर्क्स, राइट? जो भी आपको जिस भी फील्ड में जाना है.
So this is the major reason कि ये पूरा boot camp this will be completely free, right? And we will try कि इस boot camp को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे. Means we will have at least I guess 1 घंटा देंगे, 1 घंटा maybe 1.5 1.5 घंटा कुछ ऐसे, right? And then we will simply wrap up, okay? And maybe tomorrow फिर से कल हम same time पे मिलेंगे, right? And then we'll again start the same thing, right? Okay, so I guess now we can just good to go, right? So yeah, so let me just tell me again about myself जो कि अभी लोग जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं. So my name is Abhinay, right? I have my master from IIT Jodhpur and I am working as a remotely as a data scientist for a 50 Star Technologies, right? And I'm the founder of the edtech company that is called the Hygiene Labs Private Limited. और इसके पहले मैंने बहुत सारी कॉलेज में एज अ टेक्निकल ट्रेनर भी पढ़ाया है, राइट? इवन पढ़ा भी रहा हूँ, ओके? द सेम थिंग, मतलब यू कैन टेक एनी कॉलेज मे बी फ्रॉम द यूपीएस, राइट, टू द शुल्ली यूनिवर्सिटी, मे बी यू कैन टेक द चितकारा यूनिवर्सिटी, राइट, LPU एज वेल, द पारुल यूनिवर्सिटी, राइट? और भी बहुत सारे साउथ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कुछ काइंड ऑफ सेमेस्टर भी पढ़ाया है. आप डिलीवर्ड द बूट कैंप्स एज वेल, राइट, इन्हीं सारी टॉपिक्स में, ओके? एंड इवन आई एम जस्ट वर्किंग फॉर अ US बेस्ड कंपनी एज वेल दैट इज कॉल्ड दी टेकमेंट्री. सो मैं कॉर्पोरेट वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी मैं यूजुअली पढ़ाता हूँ ड्यूरिंग द नाइट्स, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, सो दिस इज ऑल अबाउट मी, राइट? एंड आई होप कि आप लोग भी काफ़ी कुछ सीखोगे इस सेशन से, राइट? एंड आफ्टर दिस थिंग आप भी मतलब you will also do the kind of good things in your life, right? Because this is something that can take you from low level to the high level, right? So this is the one thing. Let's start our class, right, session. और जो भी आपकी queries होंगी that I will just answer in between, right? Okay. So this will be our day 1, right? और day 1 में what we will cover, we will simply start with the basic of Python, right? And we will cover few concept of the Python. मतलब starting से data types क्या होते हैं, why we go with the Python language, other language क्यों नहीं, और other language कहाँ पे use होती हैं, right? Python कहाँ पे use होगी, and so on, right? So अगर आपको कोई डाउट होगा तो again I am just telling you, you can actually type in the chat section. So I'm just looking at the chat section, मैं आपको reply भी दूंगा. Yes Tina, mean after the 7 days training boot camp you will get the certificate as well, right? जिसमें completely लिखा होगा that this is the kind of industrial training, right? And in this industrial training, this is for the 7 days. Okay, so again this thing also you will get by the end of this entire boot camp. And one more thing, during the class we will share the one Google form as well, जिसमें से आपको अटेंडेंस भी अपनी लगानी है. मीन वी वांट कि यार जो भी बच्चे काइंड ऑफ अटेंड कर रहे हैं दिस सेशन को, राइट, दे विल ओनली गेट दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, राइट? एंड दिस विल बी काइंड ऑफ मेजर इम्पैक्ट इन योर रेज्यूमे एज वेल. मतलब अगर आप 7 दिन की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगाओगे तो दैट विल मेक सम सॉर्ट ऑफ you can say the more impact in your resume, right? In the certification portion you can just put this particular certificate, right? Okay, so now starting with the session, right? So let me just ask you one query, right? You can just simply use the chat section. Why we use the Python as the programming language? Anyone who wants to tell that why we are using the Python as the programming language? I mean, what is the importance of kind of studying the Python as the programming language? हम C++, yeah, that is easy, okay. And what else? Easy to learn, right? So we will comes to those things. देखो अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, so अगर मैं C++ से स्टार्ट करता हूँ, मे बी आप लोगों ने कॉलेज में फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ द इनबिल्ट लाइब्रेरी, राइट? क्वाइट करेक्ट, ओके. It provide the powerful libraries for the AI, ML and the data processing, right? That is very correct, okay.
सो सी, अगर मैं सी प्लस प्लस से स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी, और लेट से मैं सी से स्टार्ट करूँगा, राइट। सो सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दिस इज समथिंग पीओपी। आई गेस आप लोगों को पता होगा पीओपी इज, अगर नहीं पता है डोंट वरी, विल कम्स टू दिस कंसेप्ट जब हम ऊप्स वगैरह पढ़ेंगे, मे बी ऑन अ डे 6 और द डे 7, राइट। सो पीओपी एक्चुअली स्टैंड फॉर द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, जिसमें जो भी चीज आप कोड लिखते हो दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, ओके। अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस इज नथिंग बट दिस इज दी ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम क्लासेस और यू कैन से ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं समहाउ, राइट। सो वी डील विद दीज काइंड ऑफ थिंग। अब ये क्या है, मे बी दीज वर्ड्स विल बी वेरी वेरी बिग फॉर यू जो भी फ्रेशर्स होंगे, राइट, बट डोंट वरी, हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि यार जब हम बात करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस की, राइट, सो सी का आपने सिंटेक्स देखा होगा, दिस इज वेरी स्मॉल इन नेचर, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की, तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा बल्कि होता है समहाउ, राइट। सो व्हाट द डेवलपर हैव थिंक, उन्होंने जब ये लैंग्वेज बनाई, राइट, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था लैंग्वेज बनाने का। सो द पर्सपेक्टिव वाज दैट जस्ट टू कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। दैट मीन कि भाई आपको सिंटेक्स भी आसान लगे, राइट, एंड इवन इट विल बी मोर पावरफुल, मतलब इसमें ऊप्स का कंसेप्ट भी होना चाहिए और इसमें पीओपी का भी कंसेप्ट होना चाहिए, राइट। एंड दिस इज द मेजर रीजन व्हाई द पाइथन एक्चुअली कम्स इन द एग्जिस्टेंस, मतलब पाइथन क्यों आई मार्केट में, दिस इज द मेजर रीजन काइंड ऑफ, राइट। आप ये बोल सकते हो कि इसमें ऊप्स भी होता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दिस इज द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने कोड किया होगा कि यूजुअली हम पाइथन को फंक्शन बना के भी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग एनी क्लास और एनीथिंग, राइट। लेकिन अगर मैं ऊप्स की बात करूं तो वी यूजुअली स्टार्ट विद दी क्लासेस, राइट, फिर उसके अंदर हम फंक्शंस वगैरह बनाते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज द मेजर रीजन। अगर मैं आपको एक छोटा सा लिटिल बिट कुछ डेमो दूं, सो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, सो दिस इज दी काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम, राइट, मोर ओवर सिमिलर टू द सी प्लस प्लस, जैसे जावा भी आपका पीओपी होता है, राइट। सो इन अ सिमिलर वे वी हैव दी सी प्लस प्लस एज वेल और द जावा का सिंटेक्स। अगर देखो इस गिवन कोड में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, वी आर सिंपली डिक्लेयरिंग द क्लास ओवर हियर कि ऐड नाम का एक क्लास है, उसको क्रिएट किया, देन हमने कुछ सिंटेक्स वगैरह लिखा, राइट। देन वी हैव डिफाइन द टू वेरिएबल ए एंड बी, और उनकी वैल्यू को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, देन वी आर सिंपली प्रिंटिंग दी सम विच इज सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। जिसको जावा थोड़ी बहुत आती होगी उसको समझ में आ रहे होंगे सिंटेक्स, बट डोंट वरी, राइट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, दिस इज द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन अ सिमिलर वे हम सी प्लस प्लस के लिए भी ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, राइट। बट ऑन द अदर वे अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, राइट, सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वी डोंट डिफाइन एनी क्लास, राइट, हम सीधा फंक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड वी एक्चुअली डिफाइन द टू वेरिएबल, उनको इनिशियलाइज करते हैं, फिर इसके बाद वी विल राइट ओवर हियर प्रिंट, then maybe you can write the sum is equal to the percentage of d, right, and a plus b, right. So आप देखो इसका सिंटेक्स कितना आसान है, राइट, लेकिन अब इसकी बात करेंगे तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल बिट, मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ, बट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर डेवलपिंग द लार्ज स्केल एप्लीकेशन, राइट, जैसे इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे हम यूजुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, right. So this is the major reason that why the Python actually comes in the existence, right, by having the power of kind of both the languages, right, both types of languages, अगर हम OOPS की बात करें या फिर POP की बात करें, right. So this is the combination we have, and the syntax wise it is very easy, right. अगर आप बात करोगे कि लिखना, right, so usually अगर कुछ भी आपको Python में प्रिंट करना होता है तो we simply write the print over here and you can just define a, that's it, है ना। सो मोर ओवर ये इंग्लिश से मैच होने वाले इसमें जो सिंटेक्स होते हैं या फिर कीवर्ड्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, राइट. सो आई होप मीन दिस थिंग इज मेकिंग सेंस टू एवरीवन, राइट. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, राइट.
अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं यार थ्योरी, ये मैं स्लाइड वगैरह आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, राइट, बट आप देखोगे साथ में तो यू विल थोड़ा ज़्यादा आपको रिलेट कर पाओगे, बट दिस इज दी वन डिफरेंस, राइट। सो सी अगर हम इस लाइन की बात करें लास्ट वाली, तो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, सम साइंटिस्ट थॉट टू इम्प्लीमेंट द रियल लाइफ प्रॉब्लम, सो दे हैव डेवलप्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, राइट। सो मोर ओवर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो उन्हीं लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते हैं जस्ट टू बिल्ड द लार्ज स्केल एप्लीकेशन, राइट। मतलब हम पीओपी लैंग्वेज से नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे हमको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, राइट। नाउ इट्स कम्स टू दी आर, जैसे आप लोगों ने बताया कि भाई पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, राइट, वेरी करेक्ट, है ना। मतलब अगर आप रैंकिंग देखोगे अभी भी पाइथन की, तो पाइथन भी अभी टॉप पे है, राइट। और ये बहुत सालों से टॉप पे लैंग्वेज है, मतलब और भी लैंग्वेजेस हैं, वी हैव जावा, वी हैव सी प्लस प्लस, वी हैव स्विफ्ट, राइट, एंड वी हैव अदर लैंग्वेज एज वेल, कॉटलिन भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन अभी भी टॉप पे बनी हुई है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल नीड, राइट। लोग पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डेटा साइंस के फील्ड में, राइट। दे आर सिंपली यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिस्ट, राइट, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। So this is the some sort of introduction. I mean, this is the just the starting of this Python programming language, right? Introduction to the Python. That's it, right? Now jumping to the slide 2. So जैसे आप लोगों ने बोला कि यार भाई Python जो है ये easy है, right? That is very good, right? Beginner friendly है, language easy होता है, right? And all these things, okay? बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। अब हम कुछ और फीचर एक्सप्लोर करते हैं पाइथन के, राइट, कि और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें आपको नहीं पता, राइट। ओके, सो अगर हम डायरेक्टली चलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, राइट। सो यू कैन जस्ट सी इन द स्क्रीन कि भाई 8 फीचर होते हैं हमारे पास पाइथन में, मोर ओवर, राइट। पहला फीचर जो आप सभी को पता है, दैट इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट। अगर आप कोडिंग स्टार्ट करते हो तो यू डोंट नीड टू डिफाइन एनी काइंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और एनीथिंग, राइट। आपको कुछ भी लाइब्रेरीज वगैरह डिफाइन नहीं करना होता अनटिल अनलेस आप कुछ बाहर से यूज़ नहीं कर रहे हो, जस्ट लाइक सम एक्सटर्नल लाइब्रेरी जैसे मैटप्लॉटलिब, और मे बी यू आर यूजिंग द सीबॉर्न और पांडास और नमपाई, राइट। सो अगर आपको लेट से आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो यू सिंपली ओपन दी काइंड ऑफ कंसोल, और वहाँ पे आप सीधा लिखोगे प्रिंट, and you can just write over here, let's say Rishabh, right, that's it। और इसमें सिर्फ एक चीज होती है, that we need to see the indentation, that is very very important, है ना, कि भाई कहाँ से आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड हो रहा है, कहाँ से आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, इजी टू लर्न। वाई इजी टू लर्न? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसमें जो लैंग्वेजेस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, दे आर मोर ओवर सेम जस्ट लाइक द नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, वी हैव द ओपन सोर्स। एनीवन हु वांट्स टू टेल यार कि भाई ये ओपन सोर्स क्या होता है, किसी को पता है? दे कैन जस्ट यूज द चैट सेक्शन, यू कैन जस्ट लेट मी नो कि व्हाट इज ओपन सोर्स। कभी आपने सुना है ओपन सोर्स? यस, anyone? Okay, you can access online, okay, that makes sense। और Hugging Face library, हाँ ठीक है, वो भी open source है, you are just simply telling the kind of example, software whose source code is publicly available, right, that make much more sense, है ना। Software use code is freely available for everyone to see, use and just to get change, right, that is very correct, है ना। सो अगर देखो जस्ट लाइक हम सब इंडिया में रहते हैं, राइट। सो आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने मे बी 6th-7th में आई गेस पढ़ा होगा, राइट, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट। सो अगर हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की या फिर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, राइट, सो वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, यू कैन से, और यू कैन से वो प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि
काइंड ऑफ लोगों द्वारा बनाए गए हैं, राइट, मीन दे हैव सिंपली मेड बाय द सम सॉर्ट ऑफ डेवलपर, और वो पब्लिकली अवेलेबल हैं सभी के लिए, राइट. यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू यूज देम, राइट, दे आर फ्रीली अवेलेबल, राइट. एंड यू कैन जस्ट सी इन द इंडस्ट्री कि यार बहुत सारे लोग ओपन सोर्स काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट. इवन ओपन सोर्स में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, राइट. जैसे आपने हैक्टोबस सुना होगा, राइट, जो कि गिटहब ऑर्गेनाइज कराता है, एंड मैनी ओपन सोर्स काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर देयर इन द मार्केट, राइट. सो जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है, राइट, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड ऑफ द पीपल, इन द सेम वे अगर हम बात करेंगे कि लैंग्वेजेस या फिर सॉफ्टवेयर की, तो ओपन सोर्स वो लैंग्वेजेस होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, राइट. यू कैन यूज, एवरीवन कैन यूज, राइट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट पेइंग एनी मनी, राइट. सो दिस इज द वन थिंग. ओके, सो आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको ओपन सोर्स लैंग्वेज क्यों है पाइथन. यू कैन जस्ट सिंपली यूज विदाउट एनी कॉपीराइट इश्यूज, राइट. आप कुछ भी बनाओगे, आपको कुछ भी कॉपीराइट इश्यूज नहीं आएंगे, राइट. एंड इवन अगर आपको लगता है कि आप पाइथन में कुछ और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, तो आप डायरेक्ट कोड में जाओ, राइट. यू कैन ओपन द काइंड ऑफ गिटहब रेपो पाइथन की, उसमें जाके आप चेंजेस करो. अगर वो चेंजेस एक्सेप्ट होता है तो दे विल मर्ज योर चेंजेस एज वेल, राइट. तो आप एक कंट्रीब्यूटर बन जाओगे पाइथन लैंग्वेज को बनाने में, राइट, है ना. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. ओके, देन वी हैव द फोर्थ पॉइंट ओवर हियर, दैट द हाई लेवल लैंग्वेज. सो एनीवन हु वांट्स टू टेल यार हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, एंड मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं. क्विक, कोई भी बताएगा, एनीवन. ओके, ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स, हाँ क्वाइट करेक्ट, है ना, कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं काइंड ऑफ कि जो ह्यूमन पढ़ सकते हैं, राइट, आसानी से. अभी हम आएंगे थोड़ी देर बाद एक और स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई मशीन लैंग्वेज क्या होती है, राइट, एंड असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, एंड व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल, राइट. सो काइंड ऑफ ह्यूमन रीडेबल जो फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड दी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं. देखो जैसे ये सिंटेक्स लिखा है, तो आप इसको काफ़ी आसानी से पढ़ पा रहे हो. इवन आप अपने दिमाग में काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हो कि अगर हम प्रिंट करेंगे तो ऋषभ का नाम प्रिंट होगा स्क्रीन पे, राइट. ओके, दैट मेक्स सेंस. देन वी हैव अ डायनेमिकली टाइप्ड ओवर हियर. सो एनीवन, कोई बताएगा भाई डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है. यस, एनीवन हु वांट्स टू से डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, कोई भी. ओके, लेट मी जस्ट टेल यू. देखो मे बी अगर आपने C++ पढ़ा होगा, तो अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसके पहले आपको लिखना पड़ता है कि ये इंट डेटा टाइप का है या फिर ये डबल का है. एग्जैक्टली, राइट. वी डोंट हैव टू राइट द डेटा टाइप ऑफ योर गिवन वेरिएबल, राइट, कि भाई ये डबल है, कि ये फ्लोट है, राइट, या फिर ये कैर है आपको, या फिर ये स्ट्रिंग है. ये आपको कुछ भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट. Actually this thing is maintained by some sort of there is a functionality in the Python, right, जो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है. अब वो फंक्शनैलिटी क्या होती है, will comes to that topic as well, right. So this is called the dynamically type. जैसे अगर आप लिखोगे, let's say अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a is equal to 27, right, so ये खुद से डिसाइड कर लेगा कि जो a है ये कुछ और नहीं, इसमें इंटीजर डेटा टाइप होल्ड है, ठीक है. सो दिस इज दी वन सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट. मतलब ये भी काफ़ी आसान चीज़ है. आई होप आप याद रखोगे हमेशा. मे बी आपको थोड़ा सा ये कुछ नया मिला है यहाँ पे डायनेमिकली टाइप, है ना. ऐसे आपको बहुत कुछ नया नया भी मिलेगा. जस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ पेशेंस, राइट. ओके, देन वी हैव वन मोर थिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. एनीवन हु वांट्स टू से व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है. यस, मे बी वर्ड से आप काफ़ी कुछ गेस भी कर सकते हो इफ़ यू आर वेरी वेरी फ्रेशर, या फिर आपको कुछ भी पता नहीं है. Code written in one operating system such as Windows can run on the another operating system without modification. Yeah, quite correct, है ना. देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि यार अगर आप विंडो पे काम कर रहे हो, लेट्स से, है ना, तो आपने विंडो में कोडिंग करी, राइट. लेट्स से आपके दोस्त के पास लिनक्स है ना,
तो व्हाट यू कैन डू, वो सेम कोड आप लिनक्स में भी भेज सकते हो, राइट। और इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड सिर्फ वो कुछ लाइब्रेरीज होंगी, अगर आप कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हो तो उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट्स इट, राइट। सो आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में सेम पीस ऑफ कोड को आसानी से रन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड दी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो अब जैसे काइंड ऑफ अगर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मैं आरपाई के एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। आपने अपने पीसी में कोडिंग करा, राइट, आपने टेस्टिंग कर लिया पूरा, नाउ यू वांट टू डिप्लॉय इन दी आरपाई, मे बी लेट्स से आप कुछ रोबोट्स वगैरह बना रहे हो, और यू आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम एंड सो ऑन, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक्चुअली यहाँ पे कोडिंग करके सेम चीज को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पाइथन, राइट। एग्जैक्टली, नो नीड टू राइट द कोड फॉर ईच सिस्टम, हाँ दैट ऑल्सो मेक सम सॉर्ट ऑफ सेंस, है ना, कि हमें दोबारा फिर से वहाँ पे बैठ के उसी सिस्टम में कोड करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, अब देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड द पोर्टेबल, राइट। सेम यही सेम चीज है कि जब आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली स्विच फ्रॉम द वन प्लेटफॉर्म टू द अनदर, मतलब आप अपने कोड को कैरी कर सकते हो, राइट। एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज द पोर्टेबिलिटी नेचर ऑफ योर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। और इसी के कारण ये क्या होता है, दिस इज पोर्टेबल इन नेचर, है ना, आप कैरी कर सकते हो, राइट। अभी कैसे कैरी होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी चीजें कौन मैनेज करता है, वी विल कम्स टू द पिक्चर, राइट, कि ये ऐसे सब कैसे हो रहा है, मतलब व्हाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हाई इट इज पोर्टेबल, राइट। अगर पोर्टेबल है तो क्यों हो रहा है, एंड ऑल दीज थिंग, ओके। तो I'm just giving you some sort of introduction कि हाँ चलो भाई ये होता है इसमें, okay। Then at last we have the procedural and oriented object oriented programming language, mean just like मैंने आपको अभी बताया कि procedural oriented programming language क्या होते हैं, कि भाई जिसमें सिर्फ functions होते हैं, right, जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ functions होते हैं। मतलब जैसे आप एक पाइथन का कोड लिखो तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो int, राइट, फिर आपने मेन वगैरह बनाया, राइट, लेट्स से आपने एक ऊपर फंक्शन बनाया int add नाम का, इसमें आपने दो वेरिएबल ले लिए, एक a एंड b ले लिया, राइट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो आप डायरेक्टली फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी क्लास एंड अदर थिंग। लेकिन साथ में अगर लेट्स सपोज कि आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एक काइंड ऑफ लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, राइट, उस मोमेंट में आप कितने फंक्शंस बनाओगे यार, राइट, मतलब फंक्शन बनाते बनाते आप परेशान हो जाओगे। सो उस मोमेंट पे आपको रियलाइज होगा कि भाई यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होता तो मजा आ जाता, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसमें क्लासेस का कंसेप्ट होता है, राइट, जिसमें ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। तो व्हाट यू कैन डू, आप एक जगह कुछ फंक्शंस बनाओ, उसको हर जगह कॉल कर लो, राइट, एक जगह बनाओ उसको हर जगह कॉल कर लो, तो आपको बार बार रिपीटिशन नहीं बनाना पड़ेगा सेम फंक्शन का, राइट। इवन अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना है तो यू कैन सिंपली मेक द चेंजेस एज वेल, है ना। सो ये कुछ आई गेस फीचर्स थे, राइट, पाइथन के, कि भाई पाइथन इम्पॉर्टेंट क्यों है। और आपको आई गेस कुछ चीज़ें पता होंगी, जैसे आपको मे बी डायनेमिकली टाइप भी पता था, हाई लेवल भी पता था, राइट, सम ऑफ यू वर राइटिंग एज वेल, राइट। पोर्टेबल क्यों होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये क्या होते हैं, राइट, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी, राइट। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन वी कैन जस्ट मूव टू दी वन मोर स्लाइड। एनीवन, किसी को कुछ भी पूछना है, आई गेस किसी ने कुछ तो पूछा था ऊपर। वी विल गेट द नोट्स और आई हैव टू मेक, नो यू डोंट नीड टू मेक योर नोट्स, आप सिर्फ फोकस करो, राइट। ये मैं स्लाइड पूरी शेयर कर दूंगा मे बी आफ्टर दिस थिंग, राइट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फर्स्ट डे। सो ये चीज़ आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट, वीडियो के, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू मेक एनीथिंग, ओके। आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। टीना, सी इफ वी टॉक अबाउट दी पाइथन मार्केटिंग में कैसे यूज होता है, सो देखो अब वो भी डिफरेंट गेम है ना, मतलब अगर मैं आप समझाने जाऊंगा सो दैट विल ऑल्सो टेक सम टाइम, तो मैं आपको सिंपल बेस में बताऊंगा कि एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट, आप चीज़ों को एनालाइज करते हो एंड बेस्ड अपॉन दी एनालिसिस आप स्टेप्स लेते हो, आप एक्शन लेते हो कि आपको आपकी दुकान में क्या सामान रखना है, क्या सामान नहीं रखना है,
राइट। लेट्स से आपकी कोई दुकान है, लेट्स से एक आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, राइट। सो अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करेंगे तो आप पूरे आइटम का एनालिसिस करोगे कि कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आप कभी कोई इंसाइट जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जब आप इंसाइट जनरेट कर लोगे तो बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर इंसाइट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन कि अगर भाई पार्ले जी ज़्यादा बिक रहा है तो मुझे पार्ले जी ज़्यादा रखना चाहिए, राइट। तो इनडायरेक्टली देखो ये मार्केटिंग में ही तो यूज़ हो रहा है। Yes, at the last we will do some sort of project as well, right? Okay, what is the best practice to learn the Python? यार पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, राइट। देन फिर उसके बाद जितनी कोडिंग हो सके उतनी कोडिंग आप करो। सी पाइथन इज अ लैंग्वेज, राइट। ये पाइथन आना इज नॉट कि भाई आप कोडर बन गए हो, आपने एक टूल सीख लिया है, राइट। लेट मी मेक द थिंग मच मोर क्लियर। अब ये जो पाइथन जो टूल है इसको आप यूज़ करोगे अलग अलग जगह। आप इसको यूज़ करो जेएनएआई में, राइट। आप इसको यूज़ करो काइंड ऑफ डेटा साइंस में या फिर डेटा एनालिसिस में, राइट। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, है ना। देखो जैसे आपको हिंदी आती है तो दैट डज नॉट मीन कि आप एक बहुत अच्छे डिबेटर हो, है ना। आपको इंग्लिश आती है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब यू आर वेरी गुड इन डिबेटिंग एज वेल, राइट। आपको आती है सो दैट यू कैन कन्वे, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन दी एन नंबर ऑफ सिनारियोज, राइट। सो दिस इज द सिंपल टूल और यू कैन से द लैंग्वेज, दैट्स इट। प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसके एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मे बी लास्ट क्लास में वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरीज एंड ऑल दीज थिंग, विल सी कि क्या कर सकते हैं, है ना। मतलब क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें अभी, है ना। और भी बूट कैंप्स आएंगे, डोंट वरी, है ना। मतलब दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ पाइथन, देन विल टेक सम अदर बूट कैंप्स एज वेल, जनरेटिव एआई या फिर एजेंटिक एआई, या राइट, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह वगैरह में विल डू, राइट। मे बी इन द नेक्स्ट मंथ एंड मे बी इन द अपकमिंग मंथ, राइट। विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप एज वेल, ओके। ठीक है भाई। सो ओके, सो दिस इज द वन थिंग, राइट। ओके, सो मिस्टेक्स वगैरह भी मैं बताऊंगा आपको सुजल, डोंट वरी, है ना, कि कौन सी गलतियां नहीं करना। जो मैंने गलती करी वो आप गलती ना करो, सो दैट यू कैन लर्न मोर इजीली, राइट। सो नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक, है ना। सो आप कोई बताएगा कि यार व्हाट काइंड ऑफ एक्सटेंशन वी यूज जस्ट टू सेव योर पाइथन कोड, क्या करते हैं, किस एक्सटेंशन से इसको सेव करते हैं, एनीवन। अगर लेट्स से आपने कोई कोड लिखा है कोड 1, है ना, तो आप यूज करते हो .py, ठीक है। सो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू टेल यू दी बैक एंड वर्किंग, राइट, कि भाई आपका पाइथन लैंग्वेज एक्चुअली में चलता कैसे है, ठीक है। और चलने के साथ साथ आई एम जस्ट अगेन गोइंग टू टेल यू जो भी हमने फीचर्स अभी पढ़े थे, राइट, द पोर्टेबिलिटी नेचर, राइट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर, तो वो ऐसा क्यों था। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस स्लाइड, राइट। सो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, राइट, फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे एंड सो ऑन, राइट। सो देखो मैंने जैसे आपको बोला था, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, राइट। मतलब आई नो कि यूट्यूब में देयर आर एन नंबर ऑफ द स्लाइड्स, राइट, एन नंबर ऑफ द यूट्यूब चैनल, बट डोंट वरी, इससे ज़्यादा आपको डेप्थ में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं पाइथन की, सो देखो जब कभी भी आप पाइथन का कोड करते हो, है ना, तो यूजुअली इसको आप सेव करते हो .py में, ठीक। फिर ये जो गिवन पाइथन का जो कोड होता है इसको हम ट्रांसलेट किस में करते हैं, बाइट कोड में। अब बाइट कोड कैसे दिखता है अभी आपको दिखाते हैं, राइट। देन वी हैव अ वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटर, राइट। और इस एग्जीक्यूटर को व्हाट वी कॉल इट पीवीएम। एनीवन हु वांट्स टू टेल यार पीवीएम क्या होता है, पीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटर्स भी हैं आई गेस सो, राइट। पीवीएम कभी सुना है आप लोगों ने, मे भी सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। एनीवन, यस, okay, let me just tell you, see, pvm is nothing but it stand for the python virtual machine, right। और
ओके, नो वरी, राइट। अभी आइडिया नहीं है तो अभी आइडिया लगेगा, ठीक है। या इट स्टैंड फॉर दी पाइथन वर्चुअल मशीन। और ये यार मतलब दिस इज द काइंड ऑफ, यू कैन से दिस इज द बैकबोन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इसके कारण बहुत कुछ होता है, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्टिंग, यू कैन से, सिस्टम ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अगर ये नहीं होता तो जो भी अभी हमने फीचर्स कुछ पहले पढ़े, राइट, वो फीचर एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। जैसे जावा में JVM होता है, राइट, आपने मे भी सुना होगा। तो इन अ सेम वे पाइथन में हमारे पास PVM होता है, दैट इज कॉल्ड दी पाइथन वर्चुअल मशीन, राइट। देन जैसे आपका कोड .py से बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, देन वी हैव द एग्जीक्यूटर ओवर हियर जो कि PVM होता है, राइट। देन CPU एग्जीक्यूट करता है आपके मशीन कोड को, क्यों? क्योंकि बाइट कोड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट सिंपली इनटू दी मशीन कोड, ठीक है। यहाँ से मशीन कोड में आएगा, फिर मशीन कोड को कौन लेता है, CPU लेगा और CPU रन करता है, राइट। अब ये कोड कहाँ पे पड़ा होगा, ये कोड आपका पड़ा होगा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी जानते हो आप लोग, जो कि आपका रैम वगैरह होता है, राइट, वहाँ पे पड़ा होता है। अगर आप बोलोगे तो वी कैन जस्ट गो विद दी सिस्टम आर्किटेक्चर एज वेल, राइट, कि सिस्टम आर्किटेक्चर में हार्ड ड्राइव, मेन मेमोरी, राइट, ये चीज़ें कहाँ पे यूज होती हैं, हाउ दे आर एक्चुअली हेल्पिंग टू रन द कोड, राइट। सो वो भी थोड़ा बहुत हम देखते चलेंगे साइड बाय साइड। आई नो द थिंग्स विल गेट मच मोर डीपर, राइट, बट ठीक है, देख लेंगे एक बार, है ना। ओके, सो दिस इज दी वन काइंड ऑफ फ्लो है। ये फ्लो है कि एक पाइथन का कोड एक्चुअली में चलता कैसे है। आपने वही कोड किया, है ना, आपने कोड करने के बाद जैसे आप कंपाइल करते हो तो वो कन्वर्ट किस में होता है, बाइट कोड में। फिर बाइट कोड में एक PVM होता है, दैट इज कॉल्ड दी काइंड ऑफ एग्जीक्यूटर होता है, जो कि आपके बाइट कोड को उठाएगा और किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में, राइट। अब मशीन कोड को कौन लेता है, CPU रन करेगा। CPU रन करने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो आपके कंसोल ब्लैक वाले विंडो में आपको दिखेगा, राइट। सो एक कुछ फ्लो है। अब इस फ्लो को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, राइट, कि ये सारा काम होता कैसे है। सो आई हैव वन फ्लो ओवर हियर। एक काम करते हैं, उस डेप्थ में जाने से पहले एक बार PVM देख लेते हैं, सो दैट आप वहाँ पे रिलेट कर पाओ कि भाई चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ कि यार PVM क्या है, सो देखो कुछ सम लाइंस वगैरह यहाँ पे लिखी हैं। तो PVM स्टैंड फॉर दी पाइथन वर्चुअल मशीन, राइट, and it is responsible for running your Python program, managing the execution of the environment, right। तो जब हम बात करते थे ना कि यार जो पोर्टेबल होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वो यही रीज़न है, दिस इज द रीज़न, राइट, दिस इज द रीज़न कि पाइथन वर्चुअल मशीन है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ओके। Then if we talk about more about the PVM, so PVM is the core runtime environment that execute the Python bytecode, manages the memory, provide the platform independent execution environment for the Python program. I hope अभी आप लोग को काफ़ी क्लैरिटी आ रही होगी कि भाई ये क्यों यूज़ होते हैं, राइट। व्हाट इज़ द PVM, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ PVM। अगर PVM नहीं होगा, राइट, तो आप जैसे डायनेमिकली टाइप्ड अगर जो भी आपने बात करी थी, राइट, आपको इंट ए नहीं लिखना होता, है ना। या फिर अब मान लो कि आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, इसको यूज़ नहीं किया लॉन्ग टर्म में, राइट, तो क्या होता है, PVM इसको गार्बेज में पुट कर देता है, राइट, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो। और जो मेमोरी जो हम बनाते हैं, रन टाइम मीन्स इन द सेंस जब आप अपने कोड को चलाते हो, राइट, जब आप अपने कोड को चला रहे हो, राइट, वेन एवर यू आर एग्जीक्यूटिंग योर कोड, राइट, सो दैट इज द रन टाइम, राइट। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द PVM। अगर आप चाहो तो यू कैन हैव अ वन रीड, यहाँ तक एक बार आप देख सकते हो, राइट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर, बिकॉज ऑफ दिस पोर्टेबिलिटी भी पॉसिबल है। देखो ऐसा कुछ होता है, मैं आपको अगर बोलूँ कि भाई PVM कैसे काम करता है, PVM कुछ और नहीं, बबल है ना। और ये जो बबल है इसके अंदर आपका कोड होगा, राइट, और इसी के अंदर PVM की कुछ फंक्शनैलिटी होती हैं। और जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो व्हाट वी डू, हम इस पूरे बबल को लेते हुए जाते हैं, राइट, दिस इज योर बबल, और ये पूरा एनवायरनमेंट बना होता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपको अलग से, मतलब काइंड ऑफ आप बोल लो कि भाई आपको इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला फीचर मिल जाएगा, राइट, आपको पोर्टेबिलिटी का फीचर मिल जाएगा, राइट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इनटू द पिक्चर बिकॉज ऑफ दिस थिंग, पाइथन वर्चुअल मशीन।
अब पाइथन वर्चुअल मशीन को और डेप्थ में पढ़ना, सो दैट्स अ डिफरेंट गेम, इसको भी देख लेंगे फिर कभी, है ना, कि पाइथन वर्चुअल मशीन एक्चुअली में काम कैसे करता है एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन डूइंग ऑल दीज स्टफ, राइट। सो आई गेस दिस इज मेकिंग सेंस, राइट, समझ में आ रहा है आई गेस आप लोगों को कि भाई पीवीएम क्यों इंपॉर्टेंट होता है इतना, है ना। अब देखो हाउ द पीवीएम वर्क्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट। सोर्स कोड आपने लिखा जो कि पाइथन की स्क्रिप्ट होगी, लेट्स से आपने लिखा hello.py, राइट। मैं मान के चल रहा हूँ आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, राइट, यू डोंट नो एनीथिंग, राइट, ऑल्दो यू आर फ्रेशर, तो आपके लिए भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई गेस होंगे, सॉरी इफ यू आर अ रिपीटर, राइट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे आप, कंपाइल करोगे, तो पाइथन कंपाइल द हेलो टू द बाइट कोड जनरेटिंग द hello.pyc, राइट। ये नया एक्सटेंशन बनता है, मे बी ये एक्सटेंशन आप देखते होगे जब आप C++ रन करते हो कोड, वहां पे दो फाइल बन जाती है, याद है आपको, किसी ने देखा होगा, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपने ऐसा कुछ देखा होगा जब आप C++ का कोड रन करते हो, राइट, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि दैट थिंग इज एक्चुअली मेंटेन बाय द पीवीएम, हमें उसे एंड यूजर को दिखाने का क्या ही मतलब है, आप बताओ। क्या आपने कभी उस फाइल को खोल के देखा है जो दो फाइलें बनती हैं जब आप एक C++ के कोड को जब आप कंपाइल करते हो, आई गेस नो, राइट। सो उसे हमें कुछ काम भी नहीं, आप ओपन भी करोगे दैट इज ऑल्सो ओके, आप मतलब आप उसको भी चला सकते हो इंडिपेंडेंटली, राइट, रादर देन रनिंग योर एंटायर कोड जो कि आप .cpp में सेव करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, सी पीवीएम इज द एग्जीक्यूटर, तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, राइट। तो पीवीएम एग्जीक्यूट द बाइट कोड इंटरप्रेटिंग इट एंड कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑन द कंप्यूटर, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज को कौन रन करेगा, योर सीपीयू, राइट, जो सीपीयू आपके सिस्टम में बैठा है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू रन दिस थिंग, और ये सारा कोड वगैरह कहाँ पे होगा, दैट इज इन योर रैम, और यू कैन से इन योर मेन मेमोरी, ये हार्डवेयर की बात हो गई, ठीक है। सो आई गेस इतना आइडिया आप लोग को लग रहा होगा, राइट। देखो इसके नीचे काफ़ी कुछ मैंने और भी लिख रखा है, फ्लो एग्जीक्यूशन काइंड ऑफ स्टफ, राइट। सो एक बार इसको भी आप देख लेना, ऑल्दो मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं क्विकली एक बार रीड आउट कर देता हूँ, सेम चीज़ लिखी जो अभी आपको बताया, ठीक है। तो देखो पाइथन इज इंटरप्रेटेड बट नॉट एग्जैक्टली रन लाइन बाय लाइन ओनली, राइट। जैसे अगर आप लिखते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक ही आपने कोई कोड लिख दिया, इसको सेव कर दिया किससे, hello.py से, ठीक है। सो क्या होगा, सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड कंपाइल करोगे तो .py सी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो देखो ये जो एक फोल्डर बनता होगा, मे बी आपने देखा होगा, पाई कैशे नाम का एक फोल्डर बनता होगा, मे बी अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हो तो वहाँ पे एक अपने आप फोल्डर बन जाता होगा, राइट। मे बी आपने देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो, राइट। फिर इसके बाद बाइट कोड जो होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज आपका कोड हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइज फॉर द एग्जीक्यूशन। फिर पीवीएम आता है पिक्चर में जो कि एग्जीक्यूटर होता है, फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और ये सीपीयू को रन कर देगा, राइट। और ऐसे आपका पूरा पाइथन का कोड चलता है। सो आई होप बैक एंड वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी, दैट हाउ द पाइथन इज एक्चुअली वर्किंग इन द बैक एंड, राइट। और इसी से कंक्लूड करके हम बोल सकते हैं क्या, एक लाइन कि जो पाइथन जो लैंग्वेज होती है, ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में कभी कभी क्वेश्चन कि भाई पाइथन बताओ इंटरप्रेटेड होती कि कंपाइल्ड होती, तो पाइथन इज कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड बोथ, राइट। कंपाइल्ड होती है इनटू द बाइट कोड, इंटरप्रेटेड होती है बाय द पीवीएम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू कैन से दिस इज द काइंड ऑफ कंक्लूजन, ठीक है भाई। लेट मी नो, मतलब आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, anyone is having any kind of issues or problem, you can just freely ask anything, right। मतलब आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब सिर्फ अभी इस टॉपिक से पूछेगा, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, राइट, वो मैं लास्ट में ले लूँगा, डोंट वरी, आप लिख के रख लो कि भूल ना जाओ, ठीक है। ओके, सो और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? यस, सुजल, सुजल भी हैव, राइट। सुजल आपको कोई डाउट है? इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू कैन जस्ट लेट मी नो। ओके, सो दैट मेक सेंस, ठीक है। आई गेस आपको कोई डाउट नहीं है।
देखो डॉट पी वाई सी फाइल होती है, जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि यार जैसे आपने सी प्लस प्लस रन किया होगा, तो अगर मैं डॉट पी वाई सी दिखाऊँ तो देखो ये जो है ना, ये ऐसी फाइल बन जाती है डॉट पी वाई सी में, है ना। जब आप कंपाइल करोगे तो एक डॉट पी वाई सी की फाइल बनेगी और उसमें ये चीज़ लिखा होता है, दिस इज योर मशीन कोड, सॉरी बाइट कोड, है ना, दिस इज योर बाइट कोड। अब बताओ कि यार ये बाइट कोड पढ़ के कुछ समझ पाओगे? मतलब थोड़ा सा टफ होता है ना इस चीज़ को समझना। तो हम क्यों समझे, जब हमारे पास मशीन है, राइट, जब हमारे पास पीवीएम है तो पीवीएम मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, राइट, और सीपीयू उसको रन करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, राइट। सो देखो इसको मैं और थोड़ा आसानी से अगर मैं आपको समझाऊँ ना, आप लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी है क्या? मतलब आई गेस करी होगी, है ना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने करी होगी चैट जीपीटी वगैरह में। क्या बोलते हो, राइट। आप मेरे को एक सिंपल सा आंसर बताओ कि कोड ज़्यादा आसान होता है या फिर प्रॉम्प्ट देना आसान होता है? आई गेस प्रॉम्प्ट देना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द कोड। यस, मीन यू कैन राइट द प्रॉम्प्ट, अगर प्रॉम्प्ट, हाँ या वेरी ट्रू, है ना, कि भाई प्रॉम्प्ट देना काफ़ी आसान होता है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार बाइट कोड आसान होगा या फिर मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड ज़्यादा आसान होता है, काइंड ऑफ मशीन कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देखो डे बाय डे क्या हो रहा है ना, डे बाय डे हम ऐसे जा रहे हैं इंडस्ट्री में, एंड यूज़र के लिए चीज़ों को हम और आसान बना रहे हैं, राइट। पहले बाइट कोड में काम होता था, फिर कोड आया, अब हम प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं। आप समझ पा रहे हो कि ये काइंड ऑफ ये जो फ्लो है, फ्लो कहाँ जा रहा है और ये क्यों जा रहा है, राइट। अब आपको मशीन कोड, बाइट कोड, इवन कोड से भी कुछ लेना देना नहीं है। इवन आपको कोड भी नहीं पता है, मार्केट में देखो कितने सारे वाइप कोडर हैं, आप में से बहुत सारे लोग वाइप कोडर होंगे, है ना। मैं खुद वाइप कोडर हूँ, मतलब मुझे वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आती, लेकिन हाँ आप मेरे से बोलोगे वेबसाइट बना दो, मैं बना दूंगा, है ना। सो दिस इज द थिंग कि भाई अगर आप मेरे बोलो बाइट कोड इंपॉर्टेंट है, हाँ बाइट कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली रन तो यही होगा ना, राइट, यही कन्वर्ट होगा मशीन कोड में जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। सो नाउ द थिंग इज दैट कि अगर हम बात करेंगे इस बाइट कोड की, तो हमें अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। क्यों ही देखेंगे, आप बैठो इसको समझने के लिए, राइट। देखो आपको क्या समझ में आता है, लोड ग्लोबल फंक्शन प्रिंट, इसके बाद लोड कांस्टेंट हेलो वर्ल्ड, कॉल फंक्शन वन, राइट, ये जो फंक्शन वन है इसको हमने कॉल किया, रिटर्न द वैल्यू। मतलब क्या ही सेंस बनाएगा इस, है ना। ऑल्दो ये बैकएंड में सेंस बना रहा है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ सेंस बनाएगा ही नहीं। सो ये बाइट कोड है आपका, और इसको सेव किस में करते हैं, डॉट पी वाई सी में, बस सिंपल सा है। और बताएं भाई सोजल, और कुछ, और वी शुड मूव टू दी नेक्स्ट वन, है ना। ये समझ में आया ना कि बैक एंड वर्किंग कैसे होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो पाइथन सबको पता है, इजी लैंग्वेज होती है, सब कुछ होता है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ ही लोगों को पता होती हैं, राइट। सो इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू दी, देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने चिप्स वगैरह खाए होंगे, है ना, तो चलो मेरे को बताओ यार, चिप्स के फ्लेवर्स बताओ सभी लोग, कुछ कुछ फ्लेवर्स बताओ, कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं, बताओ फटाफट फटाफट। यस, सुजल बताएंगे आप यार, मतलब सोजल इज़ वेरी एक्टिव, है ना। सोजल आप बताओ यार, कोई चिप्स का फ्लेवर बताओ। टोमेटो होता है ऐसा कुछ, है ना। फिर इसके बाद मसाला लिख लेते हैं, ठीक है भाई। और अरे फ्लेवर बताओ ना अरुण, चिली लेमन, ठीक है भाई, है ना। और कुछ, टोमेटो हो गया, और बताओ। चलो चिली हो गया, मसाला, अमेरिकन क्रीम, पेरी पेरी, ठीक है भाई, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे चिप्स के फ्लेवर होते हैं, ऐसे हमारे पास पाइथन के भी फ्लेवर होते हैं, है ना। मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है ना।
अगर हम बात करते हैं कि यार पाइथन के फ्लेवर कौन कौन से होते हैं, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पाइथन के फ्लेवर्स, राइट। सो पाइथन के जो कुछ फ्लेवर्स होते हैं, जैसे होता है बाइट कोड कंपाइलर। जैसे आपने सुजल पूछा कि यार बाइट कोड डॉट पी फाइल होता है, उसको कौन रन करता है, तो एक डेडिकेटेड एक कंपाइलर होता है जो कि सिर्फ बाइट कोड को रन करेगा, ठीक है। फिर एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास सी पाइथन होता है, जिसमें हम सी लैंग्वेज को कंबाइन करते हैं पाइथन के साथ, ठीक है। अब देखो अगर इसको थोड़ा और आसानी से मैं आपको समझाऊं, तो हम आते हैं एनाकोंडा में। एनाकोंडा आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, काफ़ी फेमस है, राइट। मतलब मैं सांप की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। एनाकोंडा आपने सुना होगा, राइट। पाइथन में जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन करते हो, डेटा साइंस के फील्ड में हो, तो आपको पता है डेडिकेटेड कंपाइलर एक हम बनाते हैं इसमें, जिसमें सिर्फ आप डेटा साइंस का काइंड ऑफ स्टफ पूरा कर सकते हो, राइट। और कोई भी साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना है या फिर डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो ये भी एक पाइथन का फ्लेवर है, राइट। फिर इसके बाद सर्किट पाइथन होता है। अगर आपको मैक्रो पाइथन, माइक्रो पाइथन जैसा कुछ भी एजुकेशनल पर्पस या फिर आपने चिप वगैरह कोडिंग करनी है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। फिर देखो माइक्रो पाइथन भी होता है, एक और फ्लेवर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए यूज़ होता है, राइट। फिर नॉर्मल जैसे हमारा पाइथन हो गया, स्टैकलेस पाइथन, अगर आपको कुछ भी चीज़ कंकरेंसी या फिर माइक्रो थ्रेडिंग में काम करना है, मे बी आप करोगे कल को इंडस्ट्री में, राइट। सो आप उसको ये यूज़ करोगे। फिर हम याद है आप जब कुछ भी डाउनलोड करते हो तो उसमें डॉट पी वाई लिख के आता है, अगर आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, है ना। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है फॉर द परफॉर्मेंस वगैरह, राइट। दिस इज फॉर द नॉलेज ओनली, है ना। अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे आयरन पाइथन। अगर आप जावा में पाइथन को यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड द जाइथन, या फिर जाइथन ही बोलते हैं यूजुअली। फिर अगर सी में अगर कुछ भी करते हो, सी के साथ एक्सटेंशन में कुछ भी करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द सी पाइथन, राइट। सो ये कुछ पाइथन के फ्लेवर्स होते हैं जो कि आपको समहाउ कुछ आप यूज़ करोगे, कुछ में भी आप फ्यूचर में यूज़ करोगे, ठीक है। सो दिस इज सम, मतलब इसको इतना कुछ देखने का जरूरत नहीं है, बट हाँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो आई जस्ट थॉट कि चलो बता देते हैं। ओके, अभी हम थोड़ा और काइंड ऑफ गो थ्रू करते हैं, राइट, वन मोर टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट। So anyone who wants to say any kind of things regarding the memory management? देखो memory management मैं क्यों बोल रहा हूँ, द रीज़न बीइंग इज दैट ये भी थोड़ा सा बैक एंड वर्किंग है पाइथन की, राइट। इसमें से हमको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ, लेट्स से सी की बात करते हैं, है ना। तो यू नो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कुछ भी इनिशियलाइज करना होता है तो आप मैलोक का यूज़ करते हो मेमोरी एलोकेशन के लिए। मे बी आपने फर्स्ट ईयर, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए तो फर्स्ट ईयर में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, राइट, है ना, ऐसा कुछ, है ना। फिर अगर आपको उस गिवन वेरिएबल को लेट से आपने मेमोरी में इनिशियलाइज कर दिया, फिर आपको इसको डिलीट करना होता है तो आप फ्री का यूज़ करते हो, राइट। फिर इसको भाई फ्री करना है, तो आप सोचो ना यार ये कितना हेक्टिक जॉब हो जाता है कि भाई कुछ भी इनिशियलाइज करना है तो मैलोक यूज़ करो, अगर कुछ भी फ्री करना है तो उसको फ्री यूज़ करो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो फिर आप कोडिंग कब करोगे, है ना। सो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अगेन हमारे पास सेम चीज़ का हम यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड द पीवीएम। पीवीएम क्या करता है, मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म तक कोई भी एक वेरिएबल को यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट, तो व्हाट इट डज, वो उस गिवन वेरिएबल को गार्बेज में पुट कर देगा, राइट, गार्बेज बना देगा, ठीक है। और फिर अगर आप उस वेरिएबल को फिर से कॉल कर, अब देखो ये क्यों करते हैं, मैं थोड़ा सा मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। मान लो आपके पास फ़ोन है, उसमें रैम है कितनी, 500 MB, है ना। अब तो भाई रैम वगैरह तो काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं। मान लो ऐसे आपने 50 वेरिएबल फालतू में डिक्लेयर करके छोड़ दिए जिनको आप यूज़ ही नहीं कर रहे, तो आपको नहीं लगता रैम फुल हो जाएगा, और रैम फुल होगा तो भाई लैग करेगा आपका सिस्टम, है ना। तो पीवीएम क्या करता है, मीनवाइल जब तक आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो उसको गार्बेज में फेंक देगा, फिर जब आप दोबारा कॉल करोगे तो ये चीज़ गार्बेज से फिर से कॉल हो जाती है। तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा बेहतरीन तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का? लेट मी नो कि ये समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर आप चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हो तो वी सिंपली थ्रो दैट पर्टिकुलर थिंग इन दी गार्बेज, ताकि आपकी रैम ना भरे, है ना। देखो मैं आपको
सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ सिस्टम डिज़ाइन से भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, राइट, कि सिस्टम डिज़ाइन से चीज़ें कैसे चलती हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो जाएगी, है ना। आप सिर्फ पाइथन लैंग्वेज नहीं सीखोगे, आप ये भी सीखोगे कि चीज़ें चलती कैसे हैं, राइट। सो तभी मैंने 500 MB लिया। अब 500 MB में बहुत कुछ भाई लगा दो, मेन मेमोरी में लगा के छोड़ दो, है ना। आपने देखा भी होगा, अगर आप सिस्टम में बहुत कुछ अगर यूज़ करते हो एट अ मोमेंट, राइट, तो चीज़ें मतलब काइंड ऑफ चली जाती हैं, राइट, पिक्चर में से लैग करेगा आपका सिस्टम, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो अब इस चीज़ को मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है, अगेन द पीवीएम वी हैव इनटू द पिक्चर, राइट। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दूँ, तो देखो, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ वी यूज द malloc टू allocate द मेमोरी एंड reallocate द मेमोरी एंड फ्री टू फ्री द मेमोरी फ्रॉम द हार्ड डिस्क, ठीक है, ओके। बट इन द पाइथन दिस मेमोरी मैनेजमेंट इज डन बाय द मेमोरी मैनेजर प्रेजेंट इन द पाइथन विच इज कॉल्ड द पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। कि भाई अगर आपने int लिखा और a लिखा तो इसको कितने बाइट देना है, तो who is actually going to decide this thing? The PVM is actually going to decide this thing, है ना। आई गेस ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी, राइट, कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो आई गेस दैट दिस थिंग इज मेकिंग मच मोर सेंस, राइट। अब चलो थोड़ा सा यार कंपेयर कर लेते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को, है ना। मे बी ये क्वेश्चन तो भाई आपके थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक भी लोगों को होता है, जो मैंने देखा है यूजुअली कॉलेजेस में, मतलब जब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी है, कि यार कौन सी लैंग्वेज पढ़ें, राइट, क्या सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए मुझे, या फिर क्या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पढ़ें, और स्पेसिफिक लैंग्वेज पढ़ें तो कौन सी लैंग्वेज पढ़ें, एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे अभी हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं, राइट, तो मैं ही नहीं बोलता कि यार सिर्फ आप पाइथन पढ़ो, इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, राइट। सो उसी के हिसाब से डिफ़र करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हो, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, राइट, कि भाई ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, राइट। तो अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। हार्डली इट विल टेक अ मिनट्स, देन विल टेक अ ब्रेक, राइट। और देन इसके बाद अगर आपके ब्रेक में कोई भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग योर करियर और एनीथिंग, यू कैन जस्ट लेट मी नो, राइट, ओके। सो देखो, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो वी हैव अ सी एंड द पाइथन, राइट। Okay, so we'll come to this question, right? Why the Python is slow if the code is small than C or C++? ठीक है, अभी आते हैं इस पे, है ना। अगर हम बात करते हैं सी या फिर पाइथन की, तो सिंटेक्स वाइज हमें सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होता है, लेकिन अगर हम पाइथन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ इंडेंटेशन होता है, जस्ट टू डिफाइन योर कोड ऑफ ब्लॉक, राइट, कि भाई ये मेरा कोड ऑफ ब्लॉक है ना। सिस्टम ये स्टैटिकली टाइप्ड होता है, दैट मीन आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा इंट ए है या फिर मेरा ये फ्लोट बी है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट इफ वी टॉक अबाउट द पाइथन, सो ये डायनेमिकली टाइप्ड होता है, यू डोंट नीड टू डिफाइन, राइट। आप डायरेक्टली उसमें चीज़ों को लगाओ, भाई ए की वैल्यू 27.5 है, तो ये खुद से ले लेगा डेटा टाइप इसका। मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि अभी हमने देखा कि भाई सी में आपने मैलोक या फिर फ्री यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट टू डिफाइन एंड जस्ट टू फ्री योर वेरिएबल। बट यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में उस गिवन वेरिएबल को यूज़ नहीं करोगे, दैट विल गो टू द गार्बेज, आपका मेन मेमोरी उस टाइम पे खाली रहेगा, ताकि सिस्टम आपका लैग ना करे, राइट। और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हम कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। देन वी हैव अ स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू, तो फास्टर है कंपाइल टू द मशीन कोड, राइट, ये स्लोवर है। अब देखो, आई गेस समवन वाज आस्किंग कि पाइथन स्लो क्यों है, जबकि इसका कोड स्लो होता है, राइट। देखो, अगर ज़रूरी नहीं है ना कि किसी की अब मैं कैसे मैं आपको समझाऊँ ये, देखो स्लो क्यों है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड भी है, राइट, और ये डायनेमिकली टाइप भी है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को डिफाइन करने में, है ना। तो इसको थोड़ा फास्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, जब हम डेटा साइंस की फील्ड में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज को हम C++ में कोड करते हैं, राइट। जो बैकएंड में जो आप लाइब्रेरीज देखते हो, जैसे नमपाई देखोगे, तो C++ में उसकी कोडिंग होती है, लेकिन हम उसको यूज़ किस में करते हैं, ऐसा पाइथन साथ में मिला के, तो दैट इज कॉल्ड द फ्लेवर ऑफ पाइथन, जो कि हमने सी पाइथन की बात करी। आई गेस आपको समझ में आया, RxT, है ना, राइट।
फिर पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये लेस पोर्टेबल होता है, राइट। फिर ये हाईली पोर्टेबल होगा, आई गेस यू नो द रीज़न, बिकॉज ऑफ पीवीएम। ईज ऑफ लर्निंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, पॉइंटर्स वगैरह होंगे, काफ़ी स्क्रैच वाली लैंग्वेज होती है, कोई मेमोरी मैनेजमेंट जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता इसमें, राइट। आपको सारी चीज़ें इसमें डिफाइन करनी होंगी, राइट। फिर उसके बाद ये इजियर होता है, सिंपल सिंटैक्स होते हैं, राइट। हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं, एंड सो ऑन। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे आपने जैसे एसी वगैरह का जैसे रिमोट होता है, राइट। सो आपको पता है कि अगर आप एसी को अगर जैसे कोई भी रिमोट हो गया, राइट, जैसे ये रिमोट हो गया, अगर आप इसमें अगर कोई भी कमांड दोगे तो तुरंत आपकी एसी ऑपरेट होनी चाहिए, राइट। सो अगर इसको आप पाइथन में कोड करोगे तो आप अभी दबाओगे, राइट, मे बी हो सकता है 2 या 3 मिनट बाद ये स्टार्ट हो, है ना। लेकिन अगर आप बात करोगे समहाउ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग की, उस चीज़ को हम सी में करते हैं क्योंकि फास्टर लैंग्वेज होती है, राइट। डायरेक्टली कंपाइल्ड हो जाएगी मशीन कोड में और तुरंत रन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कि काइंड ऑफ इंडस्ट्री में जो कि माइक्रो प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, ये चिप्स वगैरह में काम करते हैं, तो उन गिवन बंदों की जो हायरिंग होती है उसमें स्पेसिफिक लिखा होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए हमें C++ चाहिए, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं पाइथन की तो मे बी आपने जैंगो वगैरह का नाम सुना होगा, वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, राइट। स्क्रिप्टिंग में यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस के फील्ड में यूज़ होता है, राइट। और बहुत सारी डेटा साइंस के फील्ड में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एन नंबर ऑफ फील्ड्स में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। कम्युनिटीज़ की बात करें या फिर लाइब्रेरीज़ की, बहुत ही स्मॉल लाइब्रेरीज़ हैं मतलब सी में, राइट। बट भाई पाइथन की बात करें तो आप लोगों ने पहली चैट सेक्शन में बताया था कि भाई पाइथन हैव द n number of libraries, right. या फास्ट API इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, फ्लास्क में हम यूज़ करते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग, एरर हैंडलिंग में इसमें हमें मैनुअल हर चीज़ हैंडल करना पड़ेगा, राइट। इसमें बिल्ट इन ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक होते हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, मे बी इन द डे 3, राइट। कि ट्राई एक्सेप्ट हम कैसे हैंडल करेंगे जब हम फाइल हैंडलिंग वगैरह की बात करेंगे, ओके। डेवलपमेंट स्पीड स्लोअर, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट ये फास्टर होता है, क्विक प्रोटोटाइपिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू बिटवीन द सी एंड पाइथन। सो आई गेस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, होप सो, है ना। ऑल दो सी वी आर रनिंग वेरी स्लो बट आई वॉन्ट की कुछ चीज़ मिस ना हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर पाइथन, राइट। और इसके बाद एक और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है पाइथन और जावा का, तो ये भी आप पढ़ लेना, मोर ओवर सेम ही है, राइट। जावा या फिर C++ आप बोल लो, दोनों को सेम में लिखा है, राइट। तो इसको आप देख सकते हो बाद में, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन जस्ट लेट मी नो। आई डोंट थिंक कि कुछ डाउट होगा, बिकॉज आई यूजुअली थिंक फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव कि भाई उनको क्या डाउट हो सकते हैं, तो उन पॉइंट्स पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ यूजुअली, ठीक है। दैट मेक्स सेंस, है ना। सो व्हाट वी कैन डू, एक 5 मिनट का क्विक ब्रेक लेते हैं, है ना। देन विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम 2020, है ना। मे बी थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे 10-20 मिनट और, देन विल रैप अप, ओके। क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन है, राइट। सो आप बने रहिएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर हम विल मूव टू दी सम सॉर्ट ऑफ कि यार अगर आपने पाइथन आज तक नहीं किया है तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। Okay, so anyone is having any kind of doubt, so you can just let me know.
ओके सो वेलकम बैक एवरीवन, है ना. सो आई गेस सभी ने ब्रेक वगैरह ले लिया होगा, होप सो, राइट. सो विल कंटिन्यू आई गेस. Yeah, so we'll continue maybe for the I guess 10 to 20 minutes, right? And I will just circulate the Google form as well for your attendance, right? And then we can just wrap up today's session. I guess काफ़ी ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, बट थी देखो, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा, है ना. मतलब दिस इज़ नॉट अ रील कि यार 10 सेकेंड में आप स्विच मार दो दूसरे में. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना. सो देखो, दिस इज दी वन वे, है ना. मतलब आपको बैठना पड़ेगा चीज़ों को लेके, राइट. आपको समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन जस्ट क्लियर द डाउट्स, राइट. नहीं तो फिर ऐसे ना, मतलब भागने भागने से कुछ नहीं होता, राइट. दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस. ओके, सो या सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, राइट, आई विल जस्ट पुट माई लिंक्डइन हैंडल एज वेल. अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो यू कैन जस्ट लेट मी नो. ओके, राइट. सो नाउ मूविंग टू दी सेकेंड वन, कि यार आप अपना पहला पाइथन का कोड कैसे लिखोगे, राइट. सो अगर आप फ्रेशर हो, राइट, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू इंस्टॉल और एवरीथिंग, राइट, सो आप इस गिवन लिंक पे जा सकते हो, राइट. और फिर उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो योर वर्जन एज पर योर सिस्टम, राइट. ओएस अगर मैक यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग द विंडोज़, राइट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है. देन आफ्टर द इंस्टॉलेशन, देखो जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे काइंड ऑफ एक ऑप्शन आता है, राइट, कि उसको आपने टिक करना होगा, राइट. वो ऑप्शन क्या होता है, एक्चुअली वो आपके काइंड ऑफ सिस्टम को बता देता है कि भाई आपने पाइथन अभी इंस्टॉल किया है रन टाइम पे, राइट. सो उसको आप चेक कर देना. अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपको पाथ बाद में अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, राइट. एक पाथ सेट करने का ऑप्शन आता है वाइल इंस्टॉलिंग दिस थिंग, राइट. फिर वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन, राइट, सो लेट मी जस्ट शो यू. आप क्या करोगे, सी पाथ वगैरह आप सेट कर लोगे, देन वी एक्चुअली इंस्टॉल सम लाइब्रेरीज, राइट. और जब कभी भी आप, अगर मैं आपको शो करूं, लेट मी जस्ट शो ओवर हियर कमांड प्रॉम्प्ट, है ना. अगर ओपन होता है तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट ऐड दी कमांड प्रॉम्प्ट एज वेल. गिव मी अ सेकेंड, है ना. ओके, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको. आई गेस कमांड प्रॉम्प्ट अभी शो नहीं होगा. ओके, नो वरी. सो देखो, जब आप ओपन करोगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, सो वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन, तो इसके बाद आप चेक कर सकते हो बाय राइटिंग पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन. सो ये आपको वर्जन शो करेगा, राइट. जो भी आपका वर्जन है, लेट्स से आपने पाइथन 3.10 इंस्टॉल किया है या फिर जो भी इंस्टॉल किया है, राइट. और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि नेवर गो विद द लेटेस्ट वर्जन. क्यों? क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में कभी कभी कुछ ना कुछ बग होते हैं, राइट. उसको स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो ऑलवेज गो फॉर दी एक दो वर्जन पीछे, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है, राइट. और जब कभी भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो इसके साथ एक और काइंड ऑफ पैकेज इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द पिप. एनीवन हु वांट्स टू टेल यार पिप क्या होता है? कोई बताएगा? एनीवन अमंग्स यू गाइस कि यार पिप क्या होता है? Yes, package library. Okay, that makes sense. Or anyone else who wants to tell भाई pip वगैरह क्या होता है? तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो सी पाइथन सिर्फ इंस्टॉल नहीं होता, आपके साथ एक पिप भी इंस्टॉल होता है. एंड पिप इंस्टॉल काइंड ऑफ स्टैंड फॉर दी पैकेज मैनेजर बाय विच वी इंस्टॉल द अदर पैकेज. या वेरी करेक्ट, है ना. ये काइंड ऑफ पैकेज मैनेजर होता है, और जिसका फुल फॉर्म होता है पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन, राइट. ये काइंड ऑफ ये एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है अलॉन्ग विद दी पाइथन, राइट. कि अगर आपको कल को इंस्टॉल करना है पांडास, और इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल दी लेट्स से नमपाई और समथिंग समथिंग, राइट, सो वहाँ पे आप पिप का यूज़ करोगे. और पिप इंस्टॉल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए सिंपली यू आर गोइंग टू यूज दिस कमांड पिप हाइफन हाइफन वर्जन, राइट. सारा चीज़ स्मॉल केस में होगा, राइट. And let's say once you are done with this thing, then you can just simply write, let's say आपको pandas install करना है तो you will write pip install pandas,
ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स है ना, ऐसे आप बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज दी वन थिंग, राइट। देन लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, या that is the one last thing I guess, Python virtual environment. So anyone who wants to tell यार कि ये virtual environment वगैरह हम लोग क्यों बनाते हैं, why we make the virtual environment, what is the use case of making the virtual environment? Yes. ओके देखो, कभी कभी क्या होता है, लेट्स से कि आप अपने सिस्टम में एट अ टाइम, लेट्स से आप दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट 1 हो गया, एक प्रोजेक्ट 2 हो गया, राइट। सो लेट्स से प्रोजेक्ट 1 आपका पाइथन 3.10 में चल रहा है एंड प्रोजेक्ट 2 आपका पाइथन 1.12 पे चल रहा है, लेट्स से ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। सो वाई वी मेक दी वर्चुअल एनवायरनमेंट, द रीजन बीइंग इज दैट कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को आइसोलेट कर दूंगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं आइसोलेट कर दूंगा सो दैट कि डिपेंडेंसीज का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। अगर आप इसमें लेट से पांडास का कुछ नया दूसरा वर्जन यूज़ कर सकते हो, लेट से आप यूज़ कर रहे हो इसमें 1.2 और इसमें आप यूज़ कर रहे हो पांडास का लेट से 2.2, राइट। सो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर आप रूट में दोनों को इंस्टॉल करोगे, रूट मतलब सी ड्राइव में, राइट, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मे बी ये प्रोजेक्ट चलेगा तो ये नहीं चलेगा, राइट। फिर आपको फिर अनस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इसको इंस्टॉल करोगे एंड सो ऑन, राइट। हाँ, जस्ट टू स्टॉप इट्स मिक्सिंग विद द ग्लोबल पैकेजेस ऑन आवर सिस्टम, राइट, क्वाइट करेक्ट है ना। सो काफ़ी सही है ना। और इसको बनाते कैसे, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कमांड जो कि कल की क्लास में आपको हैंड्स ऑन करके भी दिखाऊंगा, ऑल्दो आई एम जस्ट राइटिंग द सिंपल कमांड। So whenever you wants to make a Python kind of environment, right, for your given project, so आप लिखोगे Python, right, -m, that mean make VNV virtual environment and you can just simply write any name. Let's say मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RXT, है ना। So क्या होगा, एक RXT नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, RXT, और इसी के अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, राइट। बट इंस्टॉल करने से पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्टिवेट दिस फोल्डर, राइट, दिस एनवायरनमेंट। सो इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, RXT/ फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा एक स्क्रिप्ट नाम का एक और फोल्डर, राइट। देन इसके अंदर जाओगे तब आपको क्या दिखेगा, एक एक्टिवेट नाम का और फोल्डर। और एक्टिवेट क्या है, ये एक बैट फाइल होगी, है ना, मे बी आपने देखा होगा ऐसा कुछ। आप जाना कभी इसके अंदर, ये ट्राई करना एक बार, राइट, और फिर इसके बाद एक बार इसको ट्राई करना। सो RXT स्क्रिप्ट एक्टिवेट बैट नहीं लिखोगे, दैट अगेन इट विल रन, राइट। तो जैसे आप इसको करोगे तो लेट्स से आप C ड्राइव में काम कर रहे हो या लेट्स से आप D ड्राइव में काम कर रहे हो, तो इसके आगे ये लिख के आ जाएगा RXT। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, राइट, है ना। योर VNV एंड / योर प्रोजेक्ट नेम, है ना, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है। लेट्स से ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग द वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के करेंगे सो दैट की कॉन्फ्लिक्ट ना हो हमारे रूट डायरेक्टरीज में जो भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हैं, राइट। या मतलब यही था आज के सेशन में, राइट। सो आई गेस हमने काफ़ी लेंथी सेशन खींच दिया, बट डोंट वरी, ये आपको अल्टीमेटली हेल्प ही करेगा, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद सम सॉर्ट ऑफ डेटा टाइप क्विकली, राइट। देन वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग प्रैक्टिस एज वेल, राइट। और कुछ ऐसे हैं 8 चैप्टर हैं, आई गेस ये 7 दिन में हो जाएंगे। देन अगेन वी हैव द whoops एंड द फाइल हैंडलिंग एज वेल, ओके। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट शेयरिंग दी अटेंडेंस शीट एज वेल, सो आप प्लीज़ इसको भर दीजिएगा, राइट। जस्ट अ मोमेंट, है ना। आई एम जस्ट शेयरिंग इन द चैट सेक्शन ओनली, ऑल्दो ग्रुप पे भी डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर देंगे, राइट, डोंट वरी, जस्ट अ मोमेंट। प्लीज़ चेक करें कि ये गूगल फॉर्म काम कर रहा है कि नहीं। लेट मी नो इफ़ यू आर एबल टू एक्सेस दिस गूगल फॉर्म।
although I can also check from my end. I guess yes, है ना? So please make sure करें, yeah. So please make sure करें कि आप इसको भर दें so that you can get the certificate as well by the end of this boot camp, right? So thank you everyone for joining यार, है ना? We'll catch you tomorrow at the same time 7 p.m. right? आपके दोस्त वगैरह हों, just let them know as well, right? They can also join right this session free of cost, right? And जितना डेप्थ में आज गए हैं विल गो टू द सेम एज वेल राइट इंक्लूडिंग द oops concept, file handling, exception handling and all these things, right? So thank you so much right for joining, right? Good night, have a good day. Thank you.